Hello student, I am Professor Arvind Kumar Jain, Systeg Rathiwad campus. I am going to take the session on C++ programming module 3rd. In this module, topic covers inheritance in C++, why and when to use inheritance, implementing inheritance in C++, modes of inheritance in C++, accessibility rules such as public mode, protected mode, and private mode. Inheritance in C++. The capability of a class to derive properties and characteristics from another class is called inheritance. Inheritance is one of the most important features of object-oriented programming. It's provide code reusability, and the term subclass, the class that inherits properties from another class, is called subclass or derived class. Superclass, the class whose properties are inherited by subclass, is called base class or superclass. Why the need of inheritance? And consider a group of vehicle. You need to create classes for bus, car, and truck. The methods fuel amount, capacity, apply brakes will be same for all of the three classes. If we create these classes avoiding inheritance, then we have to write all of these functions in each of the three classes as shown. तो हमें क्या करना रहेगा, अगर हमने इनहेरिटेंस को यूज नहीं किया तो क्लास बस में भी हम ये तीनों फंक्शन लिख रहे हैं, क्लास कार में भी हम ये तीनों फंक्शन लिख रहे हैं, और ट्रक में, क्योंकि ये कॉमन फंक्शन है जो हर व्हीकल में कॉमनली यूज होते हैं. तो दैट इज दी, हम एक बार कोड लिख रहे हैं इसी के लिए मतलब सेम कोड हम बार बार लिख रहे हैं. You can clearली see that above process result in duplication of same code 3 times. This increases the chances of error and data redundancy. To avoid this type of situation, inheritance is used. If we create a class vehicle and write these three functions in it and inherit the rest of the classes from the vehicle class, then we can simply avoid the duplication of data and increase reusability. See the class vehicle. Here we implement or use three functions, and class bus, class car, and class truck inherit these functions. So using inheritance, we have to write the function only one time instead of 3 times, as we have inherited rest of these three classes from base class vehicle. तो समझ में आया, अगर हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शंस को इनहेरिट कर सकते हैं ताकि हमारा कोड ओवरहेड बच जाए. कोड को हमें बार बार लिखना ना पड़े, हम एक बार लिखें उसको मेन क्लास में और उसके बाद उसकी सब क्लासेस में उसे इनहेरिट कर लें. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस. हाउ टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस? तो फॉर क्रिएटिंग अ सब क्लास which is inherited from the base class, we have to follow the below syntax. See these syntax is carefully. First of all, the class keyword and the
Subclass name means a derived class name. What is the name of derived class? And here we use the colon sign. ठीक है. And then the mode of inheritance means access mode. अभी हम बाद में इसके बाद समझेंगे access mode क्या होते हैं. And the base class is the name of base class, जहाँ से हम इसे inherit करने वाले हैं इस class को. तो this is the syntax for inheritance in C++. How to inherit the class. Here subclass name is the name of the subclass. Access mode is the mode in which you want to inherit these subclass, for example public, private, etc. And base class name is the name of the base class from which you want to inherit the subclass. A note: a derived class doesn't inherit access to private data members. हम private data members को inherit नहीं कर सकते. This is the simple rule. And now we see the example. In this code, this is the basic header file, namespace, and the class num. The name of class is num, and the data member may be protected, public or private, but here the data member is protected. अभी हम इसका पूरा रूल समझेंगे. The data member's name is int a and b. Here the keyword is public and the member function is void get, and in this function we receive the data for a and b. So see out this firstly receive the data a and b and then print the data and b, and here the function is and here the class is and. And the class add num, this is the keyword class, this is the subclass, colon sign, and the inheritance mode is public. अभी हम इसको समझेंगे तीनों मोड्स को डिटेल में. And the subclass name base class name is num. हमने इस क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को यहाँ पर इनहेरिट किया हुआ है सिंपली. अब इस एड नम क्लास में जो डेटा मेंबर्स हैं वो किस एक्सेस मोड के हैं, प्रोटेक्टेड हैं, इंट सी. एंड पब्लिक मोड में एक फंक्शन है मेंबर फंक्शन ऑफ एड नम का, void add. अब हमने ए एंड बी ये डेटा मेंबर कहाँ के हैं, हमारी बेस क्लास के, इनको यहाँ पे सम किया है क्लास एड नम में, और सम करके हम इसमें डिस्प्ले कराया है ये वैल्यू हमने. तो यहाँ पे देखिए आप, ये ऐड फंक्शन तो इस क्लास के लिए फंक्शन है, पर ए और बी कहाँ के डेटा मेंबर्स हैं, हमारी सुपर क्लास के या हमारी बेस क्लास के. एंड देन हियर द फंक्शन इज एंड क्लास इन एंड द मेन फंक्शन. अब मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, हमने एड नम यानी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है. ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से हम गेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. यहाँ पे बहुत सारे रूल्स अभी हमें पढ़ने हैं कि हम ड्राइव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके क्या रूल हैं, अगर हम बेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या रूल्स हैं. यहाँ पे हमें बहुत सारे रूल्स अभी डिस्कस करने हैं बेटा. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना के बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. ठीक है, और हम ड्राइव क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ऐड को और डिस्प्ले को. एंड देन अब हम इस कोड को जो है एग्जीक्यूट करेंगे हमारे कंपाइलर पे, जीसीसी कंपाइलर पे. ठीक है, तो मूव, दिस इज द एग्जांपल जीसीसी कंपाइलर 6.3 पे हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं. द क्लास नम, यहाँ डेटा मेंबर हमने जो बनाए हैं किस मोड में बनाए हैं, प्रोटेक्टेड बनाए हैं. पब्लिक प्रोटेक्टेड हम दोनों यूज कर सकते हैं. अगर हम प्राइवेट यूज करेंगे तो क्या होगा, ये डेटा मेंबर्स ड्राइव क्लास में एक्सेस नहीं होंगे. क्लियर है. तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, प्रोटेक्टेड. ठीक है, डेटा मेंबर्स किस फॉर्म में है, प्रोटेक्टेड में है, और मेंबर फंक्शन किस फॉर्म में है, किस एक्सेस स्पेसिफायर के साथ है, पब्लिक के साथ. तो हमने ये दोनों को इंटर किया वैल्यू ए एंड बी के लिए, और दोनों वैल्यूज को हमने प्रिंट कराया. देन क्लास इज एंड द ड्राइव क्लास एड नम, दिस इज द
कॉलन साइन, हम हमेशा इनहेरिटेंस में क्या यूज करते हैं, कॉलन साइन। देन पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, कोई भी एक इनहेरिटेंस का मोड हम यूज करते हैं, एंड देन दी नेम ऑफ बेस क्लास। अब यहाँ पे भी हमने जो डेटा मेंबर्स हैं एड नम क्लास के, उसको किस फॉर्म में रखा है, प्राइवेट में, प्रोटेक्टेड में और पब्लिक में से किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, तो हमने यहाँ क्या यूज किया है, प्रोटेक्टेड। क्लियर। एंड देन दी पब्लिक मेंबर फंक्शन हमने कैसा बनाया है, पब्लिक। और यहाँ पे हम ए एंड बी, ये डेटा मेंबर्स कहाँ पर हैं, बेस क्लास में, इनको इनहेरिट किया है। और हमने इस एक और फंक्शन बनाया है, डिस्प्ले फंक्शन। यहाँ हम दोनों वैल्यूज को सम करके यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। दिस इज द क्लास एंड द मेन फंक्शन। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, एड नम हमने ऑब्जेक्ट बनाया है एड नम क्लास का, यानी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। और हम ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से किसको कॉल कर रहे हैं, बेस क्लास के फंक्शन को, ड्राइव क्लास के फंक्शन को, एंड अगेन ड्राइव क्लास के फंक्शन को। तो एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ हमने इनपुट के फॉर्म में जो दिया है वो 10 एंड 20 दिया है, एंड देन रन दिस कोड। देखिए, दिस इज द इनपुट एंड आउटपुट जो हमने प्रिंट कराया है, a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20 एंड सम इज प्रिंट 30। तो दिस इज द वे सिंपली वी यूज दी, कैसे हम एक क्लास से दूसरी क्लास में डेटा मेंबर्स को इनहेरिट करते हैं। दिस इज द एग्जांपल, ओके। एंड देन दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हमने यहाँ पे ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट बनाकर बेस क्लास के फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, हम आगे इसके बहुत सारे रूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। ये एग्जांपल अभी हमने एग्जीक्यूट किया था, देखा आपने, ये हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है ये चीज देखना है। ये हमारी बेस क्लास है, ये हमारी ड्राइव क्लास है, और ये हमारा ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट से हमने फंक्शंस को कॉल किया है। एंड देन मूव टू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इनहेरिटेंस, कि हमें कौन कौन से मोड में और कैसे इसको एक्सेस करने रहते हैं और क्या रूल्स रहते हैं। तो बहुत ही केयरफुली आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। In this pictorial representation show the mode of inheritance and how to data member or member function access in inheritance. एक क्लास बेस हमने यहाँ डिजाइन की है, पब्लिक एक्सेस के साथ हमने एक वेरिएबल बनाया है int x, एंड प्रोटेक्टेड के साथ बनाया है int y। इसकी कलर कोडिंग के हिसाब से भी आप इसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। एंड प्राइवेट हमने बनाया है int z, और यहाँ क्लास हमारी क्लोज है। एंड देन अब मैंने क्लास D1 यानी ड्राइव 1 को पब्लिक मोड में अगर मैं एक्सेस करता हूं, किस मोड में एक्सेस कर रहा हूं, पब्लिक मोड में, तो हमारे पास x इज पब्लिक, y इज प्रोटेक्टेड एंड z इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम D1। दैट मीन्स कि हम क्लास D1 जो ड्राइव 1 है हमारी, उसमें हम पब्लिक मेंबर्स, डेटा मेंबर्स कैसे रहेंगे, पब्लिक, और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स कैसे रहेंगे, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। बट हम जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। एंड अनदर इज एक्सेसिबिलिटी इन इनहेरिटेंस। अब ध्यान से देखिए, अब ये प्राइवेट वेरिएबल्स, प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स और पब्लिक वेरिएबल्स, ठीक है। एक्सेसिबल फ्रॉम ऑन क्लास, यस। प्राइवेट ऑन क्लास मतलब इस क्लास में ये सारे एक्सेसिबल हैं, यस, तीनों एक्सेसिबल हैं। एक्सेस फ्रॉम ड्राइव क्लास, तो ड्राइव क्लास में ये देखो एग्जांपल, पब्लिक जो है वो एक्सेसिबल है, यस। प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल है, यस, बट प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं है। देन थर्ड इज एक्सेसिबल फ्रॉम सेकंड ड्राइव क्लास। तो सेकंड ड्राइव क्लास में अभी हम और आगे के जब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब हमें ये क्लियर होगा आसानी से कि सेकंड ड्राइव क्लास क्या है। एंड सेकंड ड्राइव क्लास में भी यही सेम रूल है, पब्लिक एक्सेसिबल रहेंगे, प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल रहेंगे, बस प्राइवेट नॉट एक्सेसिबल। तो दिस इज द एक्सेसिबिलिटी इन पब्लिक मोड, क्लियर। अब दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्टेड मोड। अब एक्सेसिबिलिटी क्या है, प्रोटेक्टेड मोड है। प्रोटेक्टेड मोड में भी आप देखेंगे सेम है, कोई माइनर से चेंजेस हैं। आप x इज प्रोटेक्टेड
दैट मीन्स जो पब्लिक डेटा मेंबर्स हैं वो प्रोटेक्टेड में भी क्या होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, और प्रोटेक्टेड तो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। एंड z इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम ड्राइव टू। क्लियर है? दैट मीन्स माइनर सा चेंज क्या है, अगर हमारा मोड ऑफ इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड होता है तो जो पब्लिक डेटा मेंबर्स रहेंगे वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, मतलब यहां तो वो एक्सेस होंगे पर इसके बाद एक्सेस नहीं होंगे। क्लियर है? एक्सेसिबल फ्रॉम ऑन क्लास, यस ऑन क्लास में तीनों एक्सेसिबल रहेंगे। एक्सेसिबल फ्रॉम ड्राइव क्लास सेम है, ड्राइव क्लास में प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं है, प्रोटेक्टेड और पब्लिक एक्सेसिबल है। एंड एक्सेसिबल फ्रॉम सेकंड ड्राइव क्लास सेम रहेगा, प्राइवेट नॉट एक्सेसिबल, प्राइवेट नॉट एक्सेसिबल और प्रोटेक्टेड और पब्लिक एक्सेसिबल रहेगा। एंड देन दी थर्ड मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज प्राइवेट। बहुत ध्यान से समझेंगे। प्राइवेट मोड में जो पब्लिक डेटा मेंबर्स हैं वो भी कैसे ट्रीट होंगे, एज अ प्राइवेट। प्रोटेक्टेड भी कैसे ट्रीट होंगे, एज अ प्राइवेट। और जो प्राइवेट रहेंगे वो तो नॉट एक्सेसिबल। क्लियर है? एंड सी अगेन, एक्सेसिबल फ्रॉम ऑन क्लास, यस। एक्सेसिबल फ्रॉम ड्राइव क्लास, यहां देखेंगे प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं होंगे, प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल होंगे और पब्लिक एक्सेसिबल होंगे। और सेकंड ड्राइव क्लास में ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सेसिबल फ्रॉम सेकंड ड्राइव क्लास में अगर प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज प्राइवेट तो कोई भी वेरिएबल हमारा एक्सेसिबल नहीं होगा। क्लियर है? ये मोड ऑफ एक्सेसिबिलिटी इन प्राइवेट मोड में। तो ये जो चार्ट है ये आपको अच्छे से समझना है। इसमें आपकी सारे जो भी डेटा मेंबर्स हैं वो कैसे एक्सेस हो रहे हैं, क्या उनका रोल रहेगा, दैट इज ईच एंड एवरी रूल शुड बी क्लियरली मेंशन। ओके, एंड देन देयर आर सम रूल्स फॉर एक्सेसिबिलिटी रूल्स। पूरा जो इनहेरिटेंस का जो बेस है वो एक्सेसिबिलिटी रूल्स के ऊपर ही डिपेंड है। तो व्हेन अ बेस क्लास इज इनहेरिटेंस इन पब्लिक मोड, देन क्या होगा, वही चीज जो मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट की है। जो भी हमारे बेस क्लास के प्राइवेट ए, प्रोटेक्टेड बी और पब्लिक सी, एक्सेस मोड इज पब्लिक, तो ए इज नॉट एक्सेसिबल, प्रोटेक्टेड बी इज एक्सेसिबल और पब्लिक इज पब्लिक। All the public member of base class become public member of drive class. They can be accessed through the function of drive class as well as by object of drive class. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑल द पब्लिक मेंबर्स ऑफ बेस क्लास बिकम पब्लिक मेंबर ऑफ ड्राइव क्लास. They can be accessed through the function of drive class, function of drive class as well as by object of drive class. Clear? So this is the important rule. All the protected members of base class become protected member of drive class and can only be accessed through function of drive class but not by the object of drive class. Clearly? And all private member of base remain private of their own class and neither be accessed through function of drive class nor by object of drive class. That means private data members access नहीं होंगे, चाहे फंक्शन के साथ करें या ऑब्जेक्ट के साथ करें, प्राइवेट डेटा मेंबर्स एक्सेस नहीं होंगे, नॉट एक्सेसिबल. ओके, एग्जाम्पल. This is the header file, this is the namespace and the class name is parent class. अब parent class में जो data members हैं वो कैसे किस मोड में है, पब्लिक में है, int id. ओके, सब क्लास इनहेरिटिंग फ्रॉम बेस क्लास पेरेंट, तो क्लास चाइल्ड इनहेरिट द क्लास पेरेंट
और इधर क्या लिखा हमने, पब्लिक और इंट आईडी चाइल्ड। ओके, कौन सा मोड है, पब्लिक मोड है। पब्लिक के रूल्स तो बहुत ही सिंपल से हैं कि हम ऑब्जेक्ट से भी फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं और डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। तो हमने यहाँ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है obj1, एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास चाइल्ड हैज ऑल डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास पेरेंट। तो obj1.id को इनिशियलाइज किया है हमने 7 से, फिर दोनों आईडी, चाइल्ड की आईडी और पेरेंट्स की आईडी को इनिशियलाइज किया है, और सी आउट किया है हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से, एक्सेस दी ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पा रहा है इस आईडी को, क्योंकि पब्लिक मोड है और डेटा मेंबर्स भी कैसे हैं, पब्लिक हैं। एंड पेरेंट में तो करेगा ही करेगा, क्योंकि पेरेंट का ही चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट है, तो पेरेंट्स के भी डेटा आईडीज को वो एक्सेस कर पा रहा है। ओके, and then move to execute this example on GCC compiler, and this is the example, class parent, and parent class में हमने क्या बनाया है, एक वेरिएबल बनाया है id p, and class is and सब क्लास क्या है, हमारी चाइल्ड क्लास है, जो किस मोड में एक्सेस कर रही है, पब्लिक मोड में एक्सेस कर रही है पेरेंट क्लास को। ओके, एंड हमने इस क्लास में भी सिंपल एक आईडी बनाई है, आईडी चाइल्ड। ओके, यहाँ क्लास हमारी एंड मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास चाइल्ड हैज ऑल डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास पेरेंट। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से आईडी में हमने इनिशियलाइजेशन किया है, और ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, और पेरेंट क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। हम उसको एक्सेस भी किससे कर रहे हैं, वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहे हैं। ये हम किस में कर पाते हैं, पब्लिक मोड में कर पाते हैं। ठीक है, एंड देन एग्जीक्यूट दिस कोड, आउटपुट विल बी द चाइल्ड ID is 7 and parent ID is 91. Okay, तो here the important concept कि पब्लिक अगर मोड है हमारा इनहेरिटेंस का, तो हम ऑब्जेक्ट से डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये एग्जांपल देखा, इसका आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया कि चाइल्ड ID is 7 एंड पेरेंट ID is 91. And accessibility rules for protected mode. When base class is inheritance in protected mode, then private A, protected B or public C. Access mode is protected. तो सेम रूल है, बस चेंज क्या होगा, जो पब्लिक है वो भी क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड। तो A is not accessible, B is accessible but protected rules, and C is accessible for protected rules. That means C is public, but C is drive class में कैसा treat होगा, as a protected. And then others rules, all public member of base class becomes protected member of drive class. They can be accessed only through function of drive class but not by object of drive class. ये लाइन बहुत ध्यान से, थ्रो फंक्शन ऑफ ड्राइव क्लास बट नॉट बाय ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास. ओके, एंड अनदर रूल, all protected members of base class become protected member of drive class. They can only be accessed through function of drive class but not by object of drive class. All private member of base class retain and remains private to their own class and neither accessible through the object nor through function of drive class. Okay, example देखते हैं. In this example, हमने वही फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को हमने इम्प्लीमेंट किया है. क्लास नेम इज num, data member is protected int और b, a and b, एंड पब्लिक में हमने एक डेटा मेंबर फंक्शन बनाया है
सिंपली जो मेंबर फंक्शन क्या कर रहा है, इन दोनों वैल्यूज को इनपुट में ले रहा है। एंड द फंक्शन शो, जो हमारे नंबर है उन्हें शो कर रहा है a इज इक्वल टू, एंड देन क्लास इज एंड, अब हमने क्या किया है, क्लास एडनम बनाई एंड प्रोटेक्टेड मोड में हम किसको इनहेरिट कर रहे हैं, क्लास नम को। तो यहाँ हमारा प्रोटेक्टेड इंट सी और पब्लिक हमारा फंक्शन है void set, एंड वन मोर फंक्शन इज देयर, यहाँ हमने गेट को कॉल किया है। क्यों किया है, क्योंकि प्रोटेक्टेड में हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कॉल ना करते हुए हमने उसको कॉल कहाँ किया है, सेट फंक्शन के साथ। ओके, अब void add, void add हम जब बना रहे हैं तो हमने क्या किया है, देखो c is the data member in addnum class and a and b data member from base class and void display। ओके, void display में हम किसको कॉल कर रहे हैं, show फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है। और cout sum में हम क्या दे रहे हैं, जो हमारा C में जो स्टोर हो रहा है सम, उसे हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ क्लास एंड, और यहाँ हमारी क्लास एंड, ये दिस इज द मेन फंक्शन। अब यहाँ हमने एडनम का ऑब्जेक्ट बनाया है, एडनम के ऑब्जेक्ट से हमने सेट को कॉल किया है। किसको कॉल किया है, सेट। सेट फंक्शन किसका है, ड्राइव क्लास का फंक्शन है, पर इस फंक्शन में हमने गेट क्लास को, गेट फंक्शन को कॉल किया है, जो कि कहाँ डिजाइन हुआ है, बेस क्लास में। ऐसे ही हमने ऑब्जेक्ट डॉट ऐड को कॉल किया है इस वाले को, तो इसमें भी क्या कॉल हो रहा है, ये। एंड देन फंक्शन हमने क्या बनाया है, डिस्प्ले। डिस्प्ले भी हम क्या बना रहे हैं, शो। तो शो फंक्शन और गेट फंक्शन दोनों इनसाइड दी ड्राइव क्लास फंक्शन कॉल हो रहे हैं, इनसाइड दी फंक्शन कॉल हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कमेंट डाला हुआ है, इन प्रोटेक्टेड मोड ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट कांट कॉल मेंबर फंक्शन डायरेक्टली, दिस इज द रूल। ओके, एंड एग्जीक्यूट करते हैं इसे हम अपने जीसीसी कंपाइलर पे, एंड देन वी सी दी प्रोसेस। देखिए क्लास नम वही प्रोग्राम है, ये आईडी पे बना हुआ है। प्रोटेक्टेड इंट ए, यहाँ पे देखिए हमने किस मोड में लिए डेटा मेंबर्स, इंट ए और बी। दैट मीन्स अगर प्रोटेक्टेड मोड है तो क्या रहेंगे, ये ट्रीट एज अ प्रोटेक्टेड, ओके, एंड पब्लिक ट्रीट एज अ प्रोटेक्टेड इन प्रोटेक्टेड मोड। ओके, तो आपको ये रूल्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं स्लाइड्स में, आपको वो पूरे ध्यान रखने हैं। एंड देन हियर वी डिक्लेयर डिफाइन अ फंक्शन void गेट, जो हमारे डेटा मेंबर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। जब भी हम वैल्यू डालेंगे रन टाइम पे, वो इनपुट कहाँ पर जाएगी, ए और बी में। एक फंक्शन हमने बनाया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, द cout numbers आर ए एंड बी में को हम प्रिंट करा रहे हैं। शो फंक्शन हमारे ए और बी की वैल्यूज को प्रिंट करा रहा है। ओके, एंड देन here the function is over and class is over, and the class addnum, drive class name is addnum, the colon sign, the mode of inheritance is protected, the name of base class is num, and then the protected member हमने यहाँ डिजाइन किया है int c, and then public mode में हमने एक फंक्शन बनाया है void set function। और इस set फंक्शन में हम किसको कॉल कर रहे हैं, गेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। गेट फंक्शन कहाँ बना है, मेन क्लास में, बेस क्लास में हमारी। क्योंकि हम डायरेक्ट गेट फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है हमारा, प्रोटेक्टेड है। ऐसे ही हमने एक फंक्शन बनाया है ऐड, और ऐड फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ए और बी को। तो ए और बी एक्सेसिबल है क्योंकि प्रोटेक्टेड है, ठीक है। एंड देन void डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन में हमने शो फंक्शन को कॉल किया है। तो शो फंक्शन कहाँ डिजाइन हुआ है, ये बेस क्लास में, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको कॉल नहीं कर सकते। एंड सी आउट दी सम ऑफ ए एंड बी, here the function is end, class is end in main। अब हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास। अब obj डॉट सेट, सेट किसका फंक्शन है, ड्राइव क्लास का फंक्शन है।
ओबीजे डॉट एड, एड भी किसका है, ड्राइव क्लास का फंक्शन है। ओबीजे डिस्प्ले, डिस्प्ले भी किसका है, ड्राइव क्लास का फंक्शन है। इन प्रोटेक्टेड मोड ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट कांट कॉल मेंबर फंक्शन डायरेक्टली। ओके, यहाँ पे हमने इनपुट दिया है 10 and 20 एंड रन करते हैं इस कोड को। देखिए आप आउटपुट, इनपुट 10 and 20 एंड देखो ये मैसेज कहाँ से आया हमारा, बेस क्लास से। नंबर्स आर 10 and 20 एंड सम इक्वल्स टू 30। ओके, तो यहाँ ध्यान रखेंगे आप कि कैसे हम मेंबर्स को, क्या रूल्स हैं वो रूल्स। एक चीज और हम इस कोड में समझते हैं, देखिए ध्यान से, ये मैंने इसको हाइड किया हुआ है। इसको क्यों हाइड किया हुआ है, क्योंकि हम ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। ये शो फंक्शन, क्योंकि मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है हमारा, प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड में रूल क्या कहता है कि आप डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शंस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे अगर हम इसको अनहाइड करते हैं तो हम किसको कॉल कर रहे हैं, शो फंक्शन को। शो फंक्शन कहाँ डिजाइन हुआ है, बेस क्लास में। तो हम बेस क्लास के फंक्शन को अगर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से एक्सेस करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, एरर। देखते हैं इसको रन करके, रन होता है या एरर आती है। इनपुट दिया, ये बता रहा है, ये एरर दे रहा है, इज नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, क्लियर है कि हम बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से, सॉरी, ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास के फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्टली कॉल किया है हमने कहाँ कॉल किया है, फंक्शन के अंदर कॉल किया है। कौन से फंक्शन के अंदर, ड्राइव क्लास के फंक्शन के अंदर हमने बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर लिया, तो इनडायरेक्टली हमने उसे कॉल किया। क्लियर है, ओके। So this is the example of protected mode. And the third accessibility rules for private mode. When a base class is inherit in private mode, then what is the reaction? Private A, protected B and public C. Access mode is private, then A is not accessible. प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों कैसे ट्रीट हो रहे हैं, एज अ प्राइवेट ट्रीट हो रहे हैं। क्लियर है, एंड देयर दी सम रूल, all the public member of base class become private member of drive class. They can be only accessed through function of drive class but not by the object of drive class. Yeah, and then all the protected member of base class become private member of drive class. They too can only be accessed through the function of drive class but not by object of drive class. This is the rule of not by the object of drive class. And all private member of base class remain private to their own class and can neither be accessed by function nor by object of drive class. So this is the private mode rules. And at single label inheritance, private and protected inheritance seems to be similar. Single label inheritance में private और protected almost same ही treat होते हैं. Okay, and the example of private mode, okay, the class num, okay, the protected data member is A and B and the public function get function and public function show function, same last example है. And class adnum is private. Okay, तो प्राइवेट क्लास है एडनम ने एक्सेस किया है किसको, नम को, किस मोड में, प्राइवेट मोड में. अब प्राइवेट मोड में किया है तो क्या रिफ्लेक्शन, जो रूल्स हैं हम उसको देखते हैं. प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर हमने यहाँ बनाया इंट सी एंड पब्लिक में एक फंक्शन बनाया सेट, और हम किसको कॉल कर रहे हैं, गेट को कॉल कर रहे हैं. ऐसे ही वॉइड बनाया, डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, सेम. एंड जो लास्ट एग्जांपल है उसी को हमने यहाँ किया है, बट हमारे रूल्स क्या हो गए, थोड़ा सा चेंज हो गए. मोड हमारा क्या चेंज हो गया है, प्राइवेट हो गया. अब हमने एड नम ऑब्जेक्ट बनाया तो सेम ऑब्जेक्ट सेट को हम कॉल करा, ऐड को कॉल किया, शो को हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, सेम. ओके, एंड
एग्जीक्यूट करते हैं इस कोड को हम एग्जाम्पल में, तो क्लियर होगा कि जो प्राइवेट सी स्क्रीन and the class name is num, protected data members int a, public function, get function similar, same function, show function is same function, but the mode is changed, mode is private, and then the almost all things are same. ऑब्जेक्ट से हमने कॉल किया है किसको, सेट फंक्शन को, ऐड फंक्शन को और डिस्प्ले फंक्शन को। ये तीनों फंक्शन कहाँ पर हैं, सेट, ऐड और डिस्प्ले, तीनों फंक्शन ड्राइव क्लास में है, क्योंकि हम ड्राइव क्लास के फंक्शन की हेल्प से ही इनडायरेक्टली बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। गेट फंक्शन ये जो दिख रहा है आपको ये, और शो फंक्शन दोनों कहाँ कॉल हो रहे हैं, ड्राइव क्लास के फंक्शंस के अंदर, ये एक कॉल और ये सेकंड कॉल। क्लियर? एंड यहाँ पे हमने वैल्यू जो पास की हुई है वो 10 और 30 पास की हुई है, ठीक है। एंड देन एग्जीक्यूट दिस कोड। A and B 10 और 30 और सम इज 40। क्लियर है? तो दिस इज द रूल फॉर एक्सेसिबिलिटी मोड। अगेन हमने यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट से कॉल करने की कोशिश करते हैं हम इस फंक्शन को। कौन से फंक्शन को? बेस क्लास के फंक्शन को। ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा? ड्राइव क्लास का है। अब यहाँ क्या आता है हम देखते हैं। एरर आनी चाहिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेस क्लास के, ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वो भी कौन से मोड में? प्राइवेट मोड में। ये एरर आ रहा है, नॉट एक्सेसिबल। क्लियर हुआ? तो हम ऑब्जेक्ट, अगर हमारा मोड कौन सा है, प्रोटेक्टेड है और प्राइवेट है, तो हम डायरेक्टली फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। दिस इज द रूल। ये आपको स्ट्रांगली याद रखना है कि क्या बेसिक्स रूल्स हैं। क्लियर हुआ ये वाला एग्जांपल? है ना, हमें कॉल नहीं करना है, एरर आएगी। आउटपुट इज डिपेंड ऑन द इनपुट्स। थैंक यू।